ناظرین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر. کل سے شروع ہونے والے اسمبلی قانون ساز کونسل کی اجلاس کو ماضی کی اجلاس کی طرح شفاف طریقے سے منعقد کرنے کا اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی و قانون ساز امور پرشانت ریڈی نے کیا انکشاف. شدید بارش سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کرنے کے لیے زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے ذمہ دار عہدیداران کو دی ہدایت. شہر کے بولن روڈ پر واقع گریف یارڈ کمپاؤنڈ وال و اسمارٹ سٹی سے متعلقہ کاموں کو اربن کنیسمری بیگالا گنیش گپتا نے افتتاح عمل میں لایا. ایم پی اروند کی جانب سے کسانوں کو ہلدی بورڈ کے قیام کے لیے دیے گئے وعدے کو عملی جامہ نہ پہنانے کے باعث طلبیدہ کسانوں کی طرف سے منعقدہ بھوک ہڑتال آج تیسرے یوم میں داخل ہو گئی. ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ قائدین کارکنان کو ہر ہمیشہ ساتھ دینے کا متحدہ ضلع نظم آباد ڈی سی سی بی چیئرمین پوچرام بھاسکر ریڈی نے کیا انکشاف. رخ تفصیل کی جانب. کل سے شروع ہونے والے اسمبلی قانون ساز کونسل کی اجلاس کے پیش نظر ریاستی حکومت کے عہدیدار محکمہ پولیس کے افسران سے قانون ساز اسمبلی کمیٹی ہال میں اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. کل سے شروع ہونے والے اسمبلی قانون ساز کونسل کے اجلاس پیش نظر ریاستی حکومت کے عہدیدار محکمہ پولیس کے افسران سے قانون ساز اسمبلی کمیٹی ہال میں اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی، قانون ساز پیٹرولیم چیئرمین وینا بھوپال ریڈی، قانون ساز امور پرشانت ریڈی، قانون ساز حکومت کے چیف ویپ دھانیم ونے بھاسکر اور لیجسلیٹو سیکرٹری ڈاکٹر نرسمہا چارو نے منعقد کیا. اس پروگرام میں چیف سیکرٹری سمیش کمار، اسپیشل چیف سیکرٹری فائنانس راما کرشنا راؤ، اسپیشل چیف سیکرٹری ایم اے اینڈ یو ڈی اراوند راؤ، پرنسپل سیکرٹری جی اے ڈی وکاس راج، ہیلتھ سیکرٹری رضویر، جی ایچ ایم سی کمشنر و دیگر نے شرکت کی. بلند شہر کے حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عرس تقریب کا آغاز عمل میں لائے جانے کی بنا پر ترقی کمیٹی سے وابستہ عہدیداران و عرس سے متعلقہ ذمہ داران کی جانب سے تمام ترین انتظامات مکمل کیے گئے. بودن شہر کے حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عرس تقریب کا آغاز عمل میں لائے جانے کی بنا پر ترقی کمیٹی سے وابستہ عہدیداران عرس سے متعلقہ ذمہ داران کی جانب سے تمام ترین انتظامات مکمل کیے گئے. بروز جمعرات کو متولی کے مکان سے سندل گندھم کا جلوس نکالتے ہوئے رینجل ویس میں مقیم درگاہ کے پاس آ کر پیش کیا گیا اور عرس تقاریب کا 3 یوم تک جاری رہنے پر دور دراز مقامات سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں جو قادر جو اس عرس تقاریب میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں اور ہر سال عرس کی تقاریب کو شاندار پیمانے پر منایا جاتا ہے. لیکن آج کووڈ کے خیر کے پیش نظر تمام عقیدت مند کووڈ-19 اصول و ضوابط پر مکمل طور پر عمل آوری کرتے ہوئے اس تقاریب کو منانے کی ذمہ دار عہدیداران نے خواہش کی.
कहता बना रहेगा तुम्हारा नाम से। कल बरोज़ चारशंबा निज़ामाबाद में हज़रत सोफी शाह मोहम्मद बुरहानुद्दीन शत्तारी अल क़ादरी सरमदी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया गया। कल बरोज़ चारशंबा निज़ामाबाद में हज़रत सोफी शाह मोहम्मद बुरहानुद्दीन शत्तारी अल क़ादरी सरमदी सरसद कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का अहाता क़दीम क़ब्रिस्तान उर्स शरीफ मनाया गया। सोफी शाह सैयद दाऊद अली शत्तारी अल क़ादरी सज्जद नशीन के मकान नागाराम से संदल माली का जुलूस रात 11 बजे जोश व खरोश से निकाला गया। इस उर्स शरीफ में हजरत सोफी मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब अल मारूफ शान पाशा क़िबला सज्जद नशीन आस्ताना हजरत सोफी हुसैन अली शाह शत्तारी अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह सरमदी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सोफी नगर निर्मल हजरत सोफी शाह मोहम्मद हुसैन शत्तारी अल क़ादरी साहब जानशीन खानका हाशमी अन्ना सागर जोगीपेट हजरत सोफी यूनुस मिर्जा क़ादरी अल चिश्ती बयाबानी साहब सज्जदा नशीन आस्ताना हजरत सैयद शाह कमाल बयाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयद रफ़ीक आलम हुसैनी क़ादरी अल चिश्ती साहब सज्जदा नशीन आस्ताना हजरत ख़तीब आलम रहमतुल्लाह अलैह जलालाबाद आगुला सोफी मोहम्मद दाऊद अली शाह क़ादरी जाम इस्लामिया निज़ामाबाद हजरत सोफी शाह मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदा नवाजी साहब हजरत मोहम्मद अब्दुल सत्तार इफ्तिखारी साहब जानशीन खानका क़ादरी निज़ामाबाद सोफी हबीब अली शाह क़ादरी साहब कुरुटला जनाब मोहम्मद अब्दुल मुकीम क़ादरी कमाली साहब जनाब अहमद क़ादरी साहब सोफी अवैस क़ादरी साहब के अलावा बेशुमार लोगों ने शिरकत की। इस उर्स शरीफ में हजरत सोफी शाह सैयद दाऊद अली शत्तारी अल क़ादरी सज्जद नशीन के मकान पर दिन में फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया था और बाद शाम की तनाविल ताम का एहतमाम किया गया। बाद संदल माली के बमकान सज्जदा साहब के महफिल समा का इनेकाद अमल में आया। इस महफिल में कवाल साहब बेहतरीन कलाम सुनाए। रात 2 बजे महफिल समा का इख्तिताम हुआ। हजरत सोफी शाह सैयद दाऊद अली शत्तारी अल क़ादरी सज्जदा नशीन ने मेहमानों का शुक्र अदा किया। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनिज गुप्ता ने दौरा करते हुए बोधन रोड पर वाक़ई ग्रेव यार्ड कंपाउंड वॉल और स्मार्ट सिटी पर मुबनी कामों का इफ्तिताम अमल में लाया। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनिज गुप्ता ने दौरा करते हुए शहर के बोधन रोड पर वाक़ई ग्रेव यार्ड कंपाउंड वॉल व स्टोन पिचिंग और स्मार्ट सिटी पर मुबनी कामों का इफ्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनिज गुप्ता ने कहा कि वज़ीर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में शहर में तरक्याती फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, रेडको चेयरमैन इसलीम, सीनियर कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस शकील, TRS पार्टी के कायद तारिक अंसारी, अकबर खान, फयाज और ईदगाह कमेटी के मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। आज बोधन रोड में बोधन बस स्टैंड के सामने जो कब्रिस्तान है, सब लोग जानते कि कुछ 2-3 साल पहले पूरा नया दीवार बना चुके हैं और जैसे कलेक्टर ग्राउंड और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो दीवारा बनाया गया, उसी तरह इस दीवार को सजाए जाएंगे, वैसे ही ब्यूटिफिकेशन करेंगे, पत्थरों के काम करेंगे। जिला कामारेड्डी बिरकुल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के अहकामात के मुताबिक मुश्तरका TRS पार्टी वर्किंग ग्रुप्स इलेक्शन इजलास मुनक़िद किया गया। जिला कामारेड्डी बिरकुल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के अहकामात के मुताबिक मुश्तरका TRS पार्टी वर्किंग ग्रुप इलेक्शन इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद DSSP चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए वर्किंग ग्रुप का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाते हुए 9 मुंतखब मेंबरान को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने रोड हादसे में जख्मी नारायणा को इलाज व मुआवजे के लिए CMRF स्कीम के तहत इनके अफराद खानदान को 60,000 रुपये का चेक हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में जिला रैतु सामान्य समिति सदर अंजी रेड्डी, ZPTC स्वरूपा, साबिका ZPTC सतीश, मार्केट चेयरमैन अशोक, शशिकांत, अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। మాది టిఆర్ఎస్ పార్టీ సెక్యులర్ పార్టీ మత కులాలకి సంబంధం లేకుండా అన్ని కులాలతోని సంబంధం కలుపుకొని ఈ రోజు పార్టీ ముందుకెళ్తుంది। ఈ రోజు అటువంటి పార్టీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ, కానీ మీరు ఒకటే, మీరంతా హిందూయిజం అనుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు, అది మంచి పరిణామం కాదు। शहर के सुभाष नगर में वाक़ई ZP दफ्तर में समाजी बहबूद कमेटी के चेयरमैन
दासरी इंदिरा की सदारत में मुनाकिदा इजलास में इलेक्शन इफिशू के तौर पर ZP चेयरमैन विठल रॉन की शिरकत। शहर के सुभाष नगर में वाक़े ZP दफ्तर में समाजी बहबूद कमेटी के चेयरमैन दासरी इंदिरा की सदारत में मुनाकिदा इजलास में एक्स इफिशू के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव, CEO गोविंद नायक, ZPDC मेंबरान अंबर सिंह चंदू, SC ST BC माइनॉरिटी से वाबस्ता जिम्मेदार ओहदेदारान महकमा ख़वातीन व इत्तिफ़ाल बहबूद के ओहदेदारों ने शिरकत की और कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से BT SC ST माइनॉरिटी तरक्की से वाबस्ता स्कीमात इन तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान दिलचस्पी ले और अमल करते हुए हॉस्टल की तामीर अमल में लाने का इंकशाफ किया। వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఇచ్చేసిన హైయర్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ ఈ సందర్భంగా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ఎజెండా ప్రకారం పోవాల్సి గారు చేర్పర్సన్ ఇంకా 4 డేస్ చెప్పు టైంలోపు పంపించండి టైం అట్లా చేయండి 2 డేస్లో పంపిస్తారు, వారంలో పంపిస్తుంటే మళ్ళీ MP अरविंद का ओहदे से इस्तीफा का मुतालबा करते हुए निंदपेट मंडल मुआवजा तलवेदा के हल्दी से वाबस्ता किसानों की जानिब से मुनाकिदा भूख हड़ताल आज तीसरे यौम में दाखिल हो गई। निंदपेट मंडल मुआवजा तलवेदा में हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए किसानों की जानिब से मुनाकिदा भूख हड़ताल आज 3 यौम में दाखिल हो गई। इस मौके पर मुआवजा तलवेदा से वाबस्ता किसानों ने कहा कि गुज़िश्ता मुनाकिदा इंतखाबात के मौके पर हल्दी बोर्ड के क़याम के ताल्लुक से वादा करके वादे को अमली जामा न पहनाने पर बरहमी का इज़हार किया और फौरी तौर पर MP अरविंद को इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मौजा से वाबस्ता हल्दी के किसान व दीगर कायदीन ने शिरकत की। ప్రభుత్వంది ప్రజలది ఒక వ్యవస్థని లా అండ్ ఆర్డర్ని శాంతి భద్రతలను కాపాడే ఒక వ్యవస్థ, ఆ వ్యవస్థను కూలగొడతా అంటున్నావు. నీకు అసలు ఒక లీడర్కి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఉన్నాయా? నీకు ఒక ఎంపీకి ఉండాల్సినటువంటి కనీస లక్షణాలు ఉన్నాయా? నీకు ఒక రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఉందా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఎవరిని రెచ్చగొడుతున్నావు? ఎటు తీసుకపో भीमगल मंडल के MPDO दफ्तर में पोषण अभियान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगल मंडल के MPDO दफ्तर में पोषण अभियान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ICDS CDPO संध्या रानी ने कहा कि पोषण टेक्नोलॉजी के ताउन से मुस्तहिक़ीन को उम्दा ग़िज़ा फराहम करते हुए इनके रवैये और बर्ताव में मुनासिब तब्दीली लाई जा सकती है। मुआवज़ात में हामिला जच्चा बच्चा बालिग़ बच्चों में तग़ज़िया बख्श अद्वियात की फ़राहमी के मुताबिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि हामिला ख़वातीन तरकारियों का भरपूर इस्तेमाल करने के बाइस खून की कमी की शिकायत को दूर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ACDPO गणेश्वर, सुपरवाइजर रमा देवी, सविता, पद्मा, उषा रानी, आंगनवाड़ी अवामी नुमाइंदे, काउंसलर, आंगनवाड़ी टीचर्स वो आया और दिगर ने शिरकत की। పోషక విలువల గురించి తెలుస్తూ పాలన ఎలా ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి, ఎలా చేయాలి అనేది ఆ విలువలను తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈరోజు అక్షరాభ్యాసం కానీ శ్రీమంతాలు కానీ అటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతూ भीमगल शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में TRS पार्टी सिटी सदर लक्ष्मण की ज़ेर निगरानी में मुस्तहिक़ीन को CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगल शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में TRS पार्टी सिटी सदर मलेला लक्ष्मण की ज़ेर निगरानी में मुस्तहिक़ीन को CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से रियासत तेलंगाना में मुक़ीम मुस्तहिक़ कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की फराहमी अमल में लाई जा रही है। इसी तरह से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी दिलचस्पी लेते हुए भीमगल मंडल को तरक्की की जानिब गामजान कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि शहर के फंक्शन हॉल सेंट्रल लाइटिंग के कामों का अनकरीब शुरू होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन बाला भगत, काउंसलर नरसैया सतीश, गंगाधर, कोऑप्शन मेंबर नवीन, अजमतुल्ला व दीगर ने शिरकत की। मुख्यमंत्री वाరు ఎలక్షన్లో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణలో తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న SC BC ST OC మైనారిటీల లబ్ధిదారులకు తన వంతు ఓ తోడబుట్టినోడింటిగా ఒక తండ్రిగా నిరుపేదల పెళ్లి చేసేటప్పుడు తన వంతు సాయంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పడ్డది కాబట్టి शहर में डेंगू मलेरिया के वाकयात में इजाफा, बिलखुसूस पुराने शहर के स्कूल के पास कचरे के अंबार, अदम सफाई पर तुलबा के मुतासिर होने के खदशात।
हुकूमत की जानिब से 1 सितंबर को तालीमी इदारों की कुशादगी के बावजूद प्राइमरी और अपर प्राइमरी सतह पर तलबा की हाजिरी हौसला अफजाई नहीं है। हुकूमत की जानिब से वालिदैन और सरपरस्तों को बारहा यकीन दहानी कराई जा रही है कि तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल काबू में है और बच्चों को बिला खौफ स्कूल रवाना किया जा सकता है। बताया कि वालिदैन और सरपरस्तों ने एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में हुकूमत के इक़दाम और स्कूल्स में फासले के साथ क्लासेस के अहतमाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत को उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते तक स्कूल में हाजिरी मजीद बेहतर हो जाएगी। इसी दौरान डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने औलिया तलबा से अपील की कि वो किसी अंदेशे के बगैर बच्चों को स्कूल रवाना करें, क्योंकि तेलंगाना में कोरोना वबा की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। इन्होंने कहा कि निजामाबाद, मलक, भद्राद्री, कोत्तागुडम, नारायणपेट अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला से सरपरस्तों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुकामी सतह पर इस तरह के मामलात पर काबू पा लिया गया। इन्होंने कहा कि जाँच करने पर इस बात का पता चला कि जो तलबा और असातिज़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो स्कूल में आने के बाद मुतासिर नहीं हुए, बल्कि स्कूल की कुशादगी से कबल ही वो वायरस का शिकार हो चुके थे। ताहम इसके असरात स्कूल की कुशादगी के बाद बेड सरेआम हुए। हुकूमत की जानिब से स्कूल में तमाम तलबा का फीवर टेस्ट लाजमी करार दिया गया। इसके अलावा बच्चों और टीचर्स के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला के लिए टीआरएस की सोशल मीडिया पर तवज्जो। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी से बढ़ते चैलेंज के पेश नज़र बरसरख्तार टीआरएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुअस्सिर इस्तेमाल की तैयारी कर ली है ताकि अपोजिशन के हमलों का जवाब दिया जा सके। टीआरएस बरसरख्तार आने के बाद तेलंगाना में अपोजिशन का मौक़िफ़ कमज़ोर रहा। दूसरी मियाद में बरसरख्तार आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी की सरगर्मियों में बतदरीज इजाफा हुआ है। हालिया अरसे में कांग्रेस और बीजेपी के नए रियासती सदर के तकर्रुर के बाद अपोजिशन की जानिब से टीआरएस पर हमलों में तेज़ी पैदा हो गई। अपोजिशन जमातें सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके नतीजे में नौजवान नस्ल तेज़ी से राग़िब हो रही है। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने अपोजिशन से निपटने के लिए सोशल मीडिया टीमों की तश्कील का फैसला किया है। पार्टी की जानिब से ज़िला और असम्बली हल्क़ात की सतह पर IT पस मंज़र रखने वाले नौजवान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया कमेटियाँ तश्कील दी जा सकती हैं। सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ अपोजिशन के हमलों का मुआसिर जवाब दिया जा सकता है, बल्कि टीआरएस की पॉलिसी और हुकूमत की स्कीमात की मुआसिर तौर पर तशहीर की जा सकती है। टीआरएस कायदीन का एहसास है कि हुकूमत की जानिब से हर तबके के लिए फलाही स्कीमात के आगाज़ के बावजूद अवाम तक स्कीमात के फ़वाइद नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये पहला मौका है जब टीआरएस की सोशल मीडिया कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और इनके ज़रिए यूट्यूब चैनल्स और दीगर प्लेटफॉर्म से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। अपोजिशन से मुकाबले के लिए स्कीमात पर मबनी क्लिपिंग्स के अलावा अपोजिशन के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए टीआरएस कायदीन के वीडियो क्लिप्स तैयार किए जाएंगे। जेडपी चेयरमैन विठल रॉक सदारत में कामों की मनसूबाबंदी के मुतालिक इजलास मुनाकिद किया गया। जेडपी चेयरमैन विठल रॉक की सदारत में कामों की मनसूबाबंदी के मुताबिक मुनक़िद इजलास में जेडपी CEO गोविंद नायक, जेडपीटीसी मेंबरान भीमगल चोटपल्ली रवि, जगरानपल्ली तनोजा, आरमूर संतोष, पंचायत राज वो रोड एंड बिल्डिंग से वाबस्ता ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल रॉक ने कहा कि हाल ही में शदीद बारिश के बाइस मुतासिरा रोड की मरम्मत करने का इज़हार कर कहा कि जेडपी के तहत मंजूर करदा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकाम जारी నాలుగు శాఖల్లో మరి ఈరోజు చెప్పడం కూడా జరిగింది। కొన్ని ప్రపోజల్స్ కూడా కొత్తవి పెట్టడం జరిగింది। ఇప్పుడు పంచాయత్ రాజ్లో ఏదైతే నాలేశ్వర్ తలవేద బ్రిడ్జ్ ఉందో ఆ బ్రిడ్జ్ 15-20 గ్రామాలకు కనెక్టివిటీ బ్రిడ్జ్, అది పోచంపాడ్ సబ్మర్జీ విలేజ్లో పోయిన గ్రామాలు, అట్లాగే ఆ రోడ్ అటు ఎంచటు నిర్మల్ జిల్లాకు కూడా కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి 2 సార్ల బ్రిడ్జ్ మరి వరదలో కోసుకపోతే టెంపరీ మరమ్మతులు కూడా మనం ముందుండి చేయించడం జరిగింది। ఇప్పుడు పర్మనెంట్ మన కలెక్టర్ గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది। शहर के आरंभ गेस्ट हाउस NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम कामारेड्डी में नई कमेटियों का इंतखाब अमल में लाया गया। शहर के आरंभ गेस्ट हाउस में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम कामारेड्डी में नए कम्युनिटी का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें निजामाबाद कामारेड्डी इंचार्ज अशोक ने शिरकत की। जिला निजामाबाद सदर के तौर पर भास्कर राव, नायब सदर की हैसियत से साई बाबा, कामारेड्डी इंचार्ज विजय लक्ष्मी और खवातीन के सेक्शन से रेशमा बेगम, इसी तरह से दीगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान ने शिरकत की। इंचार्ज अशोक
అలాగే మా తోటి మిత్రులు జిల్లా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి జిల్లా సాయిబాబా గారికి, అలాగే నారాయణరెడ్డి టౌన్ కింగ్ అయినటువంటి రేష్మా గారు, అన్నీ అంటే కింగ్ గారు అంటే అన్నీ ఎక్కడ బాధ ఉన్నా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా పోలీస్ స్టేషన్ కానీ ఎక్కడ పోయినా మహిళల కోసం పోరాడే వ్యక్తి కాబట్టి అలా అన్నాను. మరియు అమ్మాను मौसमी अमराज में इजाफे से स्कूल इंतजामिया खौफजदा। मौसमी अमराज में हो रहे इजाफे से स्कूल इंतजामिया बिलखुसूस गवर्नमेंट स्कूल्स में खौफ पैदा हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सर्दी, खांसी और नाक बहने से मुतासर हो रहे हैं और इसी हालत में स्कूल आ रहे टीचर्स तज़बज़ब में मुब्तला है कि आया इस तरह के बच्चों को क्लासरूम में दाखिले की इजाजत दी जाए या नहीं। कोविड से मुतालिक उसूल व क़वाइद पर अमल करना, बिलखुसूस समाजी फासले की बरकरारी स्कूल मैनेजमेंट के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक सरदर्द बन गया है। रहनुमाना खुतूत में महकमे तालीमात ने स्कूल्स को हिदायत दी कि अगर बच्चों में सर्दी, खांसी या नाक बहने जैसी अलामत पाई जाए तो इन्हें वापस घर भेज दिया जाए। हेल्थ डायरेक्टर के एक बयान के बाद औलियाए तलबा इन तमाम अलामतों को मौसमी अमराज समझ रहे हैं, न कि कोविड, और किसी खौफ के बगैर बच्चों के स्कूल भेज रहे हैं। बच्चे बिलखुसूस प्राइमरी सेक्शन के बच्चे कोविड से मुतालिक उसूल व क़वाइद पर अमल नहीं कर रहे हैं, वो मास्क नहीं लगा रहे, लंच के वक्फे के दौरान क्लासरूम से बाहर समाजी फासला बरकरार रखते हुए नहीं नजर आ रहे। स्कूल इंतजामिया इन्हें मास्क फराहम कर रहा है, लेकिन ये रोजाना फराहम नहीं किया जा सकता है, चूँकि प्राइमरी स्कूल्स में अमूमन जगह कम होती है, इसीलिए क्लासरूम्स में समाजी फासले की बरकरारी मुश्किल हो गई है। हफीज पेट प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लासरूम्स में कोविड क़वाइद पर अमल करने के लिए खातिर ख्वाह जगह नहीं है। तमाम बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं और इन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है, चूँकि इस मरतबा हुकूमत ने स्कूल्स को मास्क फराहम नहीं किए हैं, इसीलिए हम बच्चों को मास्क दे रहे हैं। हैदर नगर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर्स के मुताबिक इन्हें मास्क और सैनिटाइजर फराहम नहीं किए गए हैं। पहली लहर के बाद तुलबा के लिए महकमे ने मास्क का इंतजाम किया था। तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में तुलबा की तादाद में इजाफा हो गया है। मानसून के दौरान एक दिन के वक्फे से तुलबा को क्लासेस में शिरकत करने के लिए कहना बेहतर होगा, क्योंकि मौसमी अमराज में इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा कि प्राइमरी तुलबा के ज्यादातर वालिदैन यौमिया उजरत पर काम करने वाले हैं। बच्चों को तनहा घर पर छोड़ने के बजाय वो इन्हें सर्दी, खांसी और बुखार भी हो तो स्कूल को भेज रहे हैं और स्कूल इंतजामिया इन तुलबा को औकात स्कूल के दौरान तनहा घर वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जोखिम होता है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स के मुताबिक स्कूल एक दिन के वक्फे से 50% तुलबा के साथ चलाए जा सकते हैं, क्योंकि तुलबा की तादाद बढ़ गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले दरख्वास्तों की मतलूब। हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट में इवेनिंग प्रोग्राम्स के तहत दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। वर्किंग प्रोफेशनल, ग्रेजुएट खवातीन और फैशन के शौकीन इन इवेनिंग प्रोग्राम से इस्तिफादा कर सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन क्लासेस चलाई जाएगी। 1 साल मियाद के फैशन, क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी का तशहरी एथिक वेयर, जबकि 6 माही कोर्स में होम डिकोर, घरेलू सजावट एंड स्टाइलिंग, 7 माही कोर्स में अपैरल रिटेलिंग एंड विजुअल मर्च डिजाइनिंग, फैशन ब्रांडिंग एंड सप्लाई चेन कोर्सेज में मौजूद है। हर कोर्स में 30 नशिस्तें दस्तयाब है। कोर्स में दाखिले के लिए किसी भी मुसलिमा इदारे से इंटर या 12वीं जमात कामयाब होना लाजमी है, जबकि डिप्लोमा उम्मीदवार भी अहलियत के हामिल होंगे। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए 9866120777 पर रब्त पैदा करें या ईमेल वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। अक़लियती बहबूद बजट की शराइ मायूस कुन 7 बरसों में 6000 करोड़ खर्च किए गए। तालीमी और माशी तरक्की की स्कीमात ठप, बजट के उसूल में ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी। तेलंगाना में अक़लियती बहबूद के बजट के इजराए और खर्च का मौक़िफ़ मायूस कुन है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 4 बरसों से कई अहम अक़लियती स्कीमात पर अमलावरी मुतासिर हुई है। अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की से मुताल्लिक़ स्कीमात अमलन ठप हो चुकी है, जिनमें स्कॉलरशिप फीस बाज अदायगी और खुद रोजगार स्कीम के तहत बैंकों से मरबूत खर्च की स्कीम शामिल है। हुकूमत की जानिब से दलित बंधु स्कीम का ऐलान करते हुए रियासत के हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की इमदाद का न सिर्फ ऐलान किया गया, बल्कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्कीम
पर अमल आवरी का आगाज हो चुका है। अखिलतों के अलावा दीगर पसमानदा तबकात दलित बंधु की तरह स्कीम का मुतालबा कर रहे हैं। अखिलती बहबूद के गुज़िश्ता 7 बरसों में बजट का जायजा ले तो अंदाजा होगा कि हुकूमत ने 1 साल भी मुकम्मल बजट जारी नहीं किया। असम्बली में जो बजट पेश किया जाना है इसमें अखिलती बहबूद के लिए मुख्तस रकमात की जाय में महकमे फाइनेंस के अहदेदारों के तसाहिल के साथ साथ महकमे अखिलती बहबूद के अहदेदारों की अदम दिलचस्पी का अहम दाखिला। अखिलती बहबूद का कलमदान वजीर एससी डेवलपमेंट के ईश्वर के पास है, जिसके नतीजे में वह अखिलतों को दरपेश मसाइल पर खातिर खा तवज्जो देने से कासिर है। अखिलतों की तालीमी और माशी तरक्की से मुताल्लिक़ अहम स्कीमात पर बजट के खर्च के सिलसिले में आज तक कोई इजलास मुनाकिद नहीं किया गया। अखिलतों की बजट की जाय के सिलसिले में हासिल करदा आदाद शुमार में हुकूमत ने 23 ता 30 स्कीमात और मदलत का हवाला दिया है, जिसमें अखिलती इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर अखराजात शामिल है। 2014 ता 15 से 2021 ता 22 तक अखिलती बहबूद के बजट की जाय और खर्च का जायजा ले तो अंदाजा होगा कि 9 मालियाती बजट में मुख्ताज 6080 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गुज़िश्ता 7 बरसों में अखिलती बहबूद पर 6080 करोड़ का खर्च इंतहाई नाकाफी है, क्योंकि इस खर्च में अखिलती बहबूद मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर अखराजात भी शामिल है। हुकूमत ने 2014 ता 15 से 2021 ता 22 तक अमला 9987 करोड़ बजट में मुख्तस किए थे, जबकि 7708 करोड़ की इजराई अमल में आई है। इजराई के एतबार से देखा जाए तो सरकारी खजाने में 1627.81 करोड़ वापस हुए, जबकि बजट के एतबार से 3906.68 करोड़ सरकारी खजाने में वापस हो गए। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 1.5 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें बैंक से मरबूत कर्ज स्कीम के तहत ज़ेर इल्तिवा। कॉर्पोरेशन को स्कीम पर अमलावरी के लिए बजट जारी नहीं किया गया। हुकूमत ने कॉर्पोरेशन के जरिए गरीब मुसलमानों को खुद मुक्तफी बनाने और छोटी कारोबार के आगाज के लिए 50,000 कर्ज रास्त तौर पर जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक ये स्कीम शुरू नहीं की जा सकी। अखिलती बहबूद के अहदेदारों का मानना है कि इन्होंने बजट के जाय के सिलसिले में महकमे फाइनेंस को हर तवज्जो दिलाई, लेकिन इंतहाई जरूरी बजट के अलावा इजराई से ये कहते हुए गुरेज किया जा रहा है कि रियासत का माली मौक़िफ़ ठीक नहीं है। गुज़िश्ता वो बरसों से ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की रकम तलबा को जारी नहीं की गई। बजट के अदम इजराई के सबब अखिलती इदारों में स्कीमात पर अमलावरी के बारे में अहदेदार कुछ भी कहने से कासिर है। हुकूमत ने शादी मुबारक आयमा और मौज़िनीन का एजाज़ी और अखिलती अखामती स्कूल सोसाइटी को हर साल मुनासिब बजट जारी किया है। शादी मुबारक स्कीम पर रास्ता मुलावरी है, लिहाजा इसके लिए फाइनेंस की अलहदा मंजूरी और इजराई जरूरी नहीं है। तेलंगाना में अखिलती बहबूद की स्कीमात मौसर अमलावरी के लिए आंध्र प्रदेश की तर्ज पर अलहदा सब प्लान की जरूरत। मुख्तसर खबरें कुछ इस तरह से। 8वीं खानगियाने के तौर पर मरकजी हुकूमत ने ब्लू प्रिंट को तैयार करने का TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने किया इंकशाफ। इस माह की 27 तारीख को मुनाकिदा भारत बंद में तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन शिरकत करके बंद को पुरअमन बंद करने के लिए PDSU तुलबा कमेटी ने किया ऐलान। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कल से शुरू होने वाले असम्बली कानून साज कौंसिल की इजलास को माजी की इजलास की तरह शफाफ तरीके से मुनाकिद करने का असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व कानून साज उमूर प्रशांत रेड्डी ने किया इंकशाफ। शदीद बारिश से मुतासरा सड़कों की मरम्मत करने के लिए ZP चेयरमैन विठल राव ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। शहर के बोलन रोड पर वाक़ ग्रेव यार्ड, कंपाउंड वॉल व स्मार्ट सिटी से मुताल्लिक़ कामों को अर्बन कमेटी बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। MP अरविंद की जानिब से किसानों को हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए दिए गए वादे को अमली जामा न पहनाने के बाइस तलविदा किसानों की तरफ से मुनाकिदा भूख हड़ताल आज तीसरे यौम में दाखिल हो गई। TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान को हर हमेशा साथ देने का मुतहदा जिला निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने किया इंकशाफ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।